Welcome everyone to lecture 4 of our service law series, and today's focus is Article 310 of the Indian Constitution. So as we have discussed in the previous lecture, the doctrine of pleasure, it is embodied in Article 310 of the Constitution. तो जो Article 310 है वो basically doctrine of pleasure पे based है, and it talks about tenure of the office of person serving under the union or a state. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Article 310 of Indian Constitution embodies the doctrine of pleasure. It provides that members of civil services of union or the states hold office during the pleasure of the president or the governor respectively. तो बेसिकली इसमें बताया है कि जो भी सिविल सर्विसेज के मेंबर्स हैं वो अगर यूनियन में हैं तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग ऑफिस को होल्ड करेंगे, स्टेट के हैं तो गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरिंग. However, this pleasure is not absolute, as we have studied in the last lecture as well. जो भी satisfaction के grounds हैं वो absolute नहीं हैं, and even the court can look into those grounds. It is controlled and limited by constitutional provisions like Article 311. तो even the articles of the constitution जैसे कि Article 311 restriction put करते हैं Article 310, that is doctrine of pleasure. And other fundamental rights as well, for example 14, 15 and 16. The doctrine ensures administrative flexibility and also protects public servants from arbitrary actions. तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी तो इंश्योर करती ही है, लेकिन साथ में पब्लिक सर्वेंट्स को आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाती है, बिकॉज यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है और इट्स द ड्यूटी टू एक्चुअली कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो इस वजह से हमारे पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं आर्बिट्रेरी एक्शन से बच जाते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल 310, लेट्स रीड दिस. Clause 1. Except as expressly provided by this constitution, every person who is a member of defense service or of civil service of union or all India service or holds any post connected with defense or any civil post under the union holds office during pleasure of the president, and if he is a member of civil service of a state then holds the office during pleasure of the governor of the state. That is our first clause. क्या कहते हैं कि जो भी पर्सन एक मेंबर है डिफेंस सर्विस का, सिविल सर्विसेज का, ऑल इंडिया सर्विसेज का, या फिर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड पोस्ट है या सिविल पोस्ट है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द टेन्योर. दे कैन डिसमिस these persons if necessary on reasonable grounds, and in case of a state it is the governor. तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन के सर्विसेज को गवर्न करेगा, जितने भी सिविल सर्वेंट्स उसके अंडर हैं, एंड गवर्नर स्टेट को करेगा. सेकेंड क्लॉज, इट स्टार्ट्स विद नॉट विद स्टैंडिंग, विच मीन्स इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज. It says that notwithstanding that a person holding a civil post under the union or a state holds office during pleasure of president or governor, any contract under which a person not being a member of defense service or all India service of union or state is appointed to hold such a post may, if the president or the governor, as the case may be, deems it necessary in order to secure services of person having special qualifications, provide for payment to him of compensation if before the expiration of an agreed period he is required to vacate the post. तो वन बाय वन इन दोनों क्लॉजेस को देखते हैं. तो फर्स्ट क्लॉज बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं, जो हमने कल भी पढ़ी थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, उसी को इस आर्टिकल में दिया गया है कि जो भी सिविल सर्विसेज हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर होंगे. लेकिन इसमें वी शुड नोट दैट
it includes member of defense service, सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर कोई भी पोस्ट जो कनेक्टेड विद डिफेंस है या कोई भी सिविल पोस्ट, ये सभी 5 कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस एंड एनी पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस और एनी पोस्ट सिविल पोस्ट। ठीक है, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट क्लॉज। एंड सेकेंड क्लॉज बस बात करता है उन सर्विसेज के बारे में जो कि पर्सन्स हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड ये क्लॉज है। इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज एंड इधर डिफेंस सर्विस के मेंबर्स की बात नहीं की गई है और ना ही ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो इन सभी सर्विसेज का कोई मेंबर नहीं है। सेकेंडली, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर है, सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक ऐसी पोस्ट होल्ड कर रहा है जहाँ पे क्या चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी अग्रीड पीरियड है, स्पेसिफाइड पीरियड है, उसके एक्सपायरेशन से पहले अगर उसे वैकेट करना है वो पोस्ट, तो ये एक एडिशनल क्लॉज ऐड किया गया है। Now let's move on to the key points about Article 310. General rule: all civil and defense posts are held at pleasure of president or governor. Secondly, clause 2, which talks about special contracts, that is they require a special qualification. एक special qualification चाहिए होती है इन सेकेंड क्लॉज जिसके बारे में बात करें पोस्ट के लिए। तो अगर उसमें किया गया है फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सर्विसेज, तो कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है जब भी ही इज़ रिक्वायर्ड टू वेकेट दैट पोस्ट। अगर उसका जो भी अग्रीड पीरियड है उसके एक्सपायरेशन से पहले आप उसे कह रहे हो कि आप वेकेट कर दो, तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। दैट इज़ अ रेस्ट्रिक्शन दैट इज़ ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि कोई भी अपनी मन मर्जी से आपको नहीं निकाल सकता, बिकॉज इंडिया एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाली कंट्री है। तो यहाँ पे हम आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ पे हम डिसमिस भी करेंगे बिफोर द अग्रीड पीरियड, तो वहाँ पे आप कॉम्पनसेशन देंगे उन्हें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन क्लॉज 2, बट क्लॉज 2 डजंट टॉक अबाउट डिफेंस सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट। इट ओनली टॉक्स अबाउट सिविल पोस्ट, जहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं वहाँ पे ऐसा होगा। एंड क्लॉज 1 इज़ अ जनरल क्लॉज दैट अप्लाइज wholly, and it states that one will hold his post during the pleasure of president और गवर्नर रिस्पेक्टिवली। स्टेट के केस में होगा गवर्नर और यूनियन के केस में होंगे प्रेसिडेंट। Now, there are certain limitations that are on this article. Firstly, the Article 14, 15 and 16, the Golden Triangle. तो ऑब्वियसली जो भी 14, 15, 16 के लिमिटेशंस हैं वो इस पे लगेंगी। कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता जो डिस्क्रिमिनेटरी है या फिर किसी भी तरीके से किसी की अपॉर्चुनिटी को, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हैम्पर कर रहा है। देन also there is a limitation under Article 311 which will be discussed later on in the video of Article 311, but जो 311 है वो उसमें फर्दर प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि अगर कुछ भी एक्शन लेना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो टर्मिनेशन लेटर टाइप किया एंड वन विल बी डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज या फिर उसका रैंक रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट एक प्रॉपर जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 311 वो फॉलो होगा। नाउ इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल का केस। इसमें बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको डिसमिस किया गया था विदाउट एनी इंक्वायरी, और इंक्वायरी जो है वो मैंडेटेड है अंडर आर्टिकल 311
कि कोई भी सिविल सर्वेंट्स विदाउट एन इंक्वायरी डिसमिस नहीं किए जा सकते। तो इस वजह से क्लियरली एक वायलेशन था आर्टिकल 311 का। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको क्लेम करें अंडर एक्सेप्शन टू 311, दैट इज कि इट वाज नॉट रीजनेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी, कि यहाँ पे इंक्वायरी करना संभव ही नहीं था बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शंस दैट आर गिवन अंडर द आर्टिकल 311. नाउ द क्वेश्चंस दैट वर बिफोर द कोर्ट इंक्लूड whether article 310 empowers dismissal without inquiry, whether article 311 is mandatory for every termination, क्योंकि 310 बोलते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर पे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, except the constitutional exceptions as have been mentioned here, except as provided by this constitution, ठीक है। तो फिर जहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है वहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, सब बोला है। तो क्या 310 जो है वो एम्पावर कर रहा है, तो फिर क्या 311 मैंडेटरी है कि जब डिसमिस करेंगे तो 311 का प्रोसीजर फॉलो होना ही चाहिए। देन जो भी एक्सेप्शंस दी गई हैं 311 के अंडर, उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया था इस केस में, बट अभी हम इसे 310 से ही सॉरी 310 के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रीअफर्म दैट सर्विसेज आर हेल्ड एट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर अंडर 310. However, Article 311 provides constitutional protection and cannot be bypassed under specific circumstances mentioned in proviso to Article 311 Clause 2. Further, it has given the circumstances where inquiry is not reasonably practicable or where dismissal is necessary for security of the state, या फिर there is a penalty which is imposed on conviction in a criminal case. Now, where inquiry is not held, the reasons, there must be recorded reasons as to why it was impracticable. So that means कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी सर्विसेज हैं वो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्लेजर पे, बट आर्टिकल 311 का एक्सेप्शन ऑब्वियसली उस पर लगेगा, लिमिटेशन उस पर लगेगा। So we can conclude that doctrine of pleasure is not absolute in India. Secondly, reasonable restrictions under Article 311 are integral to protect civil servants from arbitrary dismissal. किसी को भी arbitrarily dismiss नहीं किया जा सकता, 311 की protection वहाँ पे invoke हो जाएगी। Public interest, security and administrative efficiency are considerations that guide the exceptions. ये तीनों हमारे प्राइम इंटरेस्ट्स हैं जो कि रहेंगे कंसिडरेशन में। देन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स आर्टिकल 311 में एम्बाइब किए गए हैं। देन टू कंक्लूड, आर्टिकल 310 कॉन्फर्स वाइड पावर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव टू मैनेज सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज. However, in India, this pleasure is limited by fundamental rights and due process requirements under Article 311. So this Tulsiram Patel clearly affirmed that doctrine is not an unbridled power. Thus, Indian version of doctrine of pleasure balances sovereign authority with rule of law and protection of individual rights, ensuring fairness and justice in public services. To conclude, जो आर्टिकल 310 है दैट इज़ अबाउट टेन्योर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, तो वो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। उसमें भी एक्सेप्शन दी गई है जब स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है और उसमें गिवन टाइम से पहले अगर आप टर्मिनेट करें तो आपकी क्लॉज 2 में आ जाएगा। देन वी हैव स्टडीड कि जो आर्टिकल 310 है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 311 का और आर्टिकल 14, 15, 16 का। देन टू कंक्लूड, तुलसीराम पटेल का जो केस है वो हमने पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 310 जो है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का एप्लीकेशन है इंडिया में, वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स और प्रिंसिपल्स विल प्रिवेल. So if you found this video helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel for more content like this. Law takes time and consistency, but with the right approach you will get there. Keep learning, stay focused, and I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.